Good morning, students. Let's start lesson number 10, A Strange Wrestling Match. Now, here we are going to read a story about Vijay Singh, who was a very famous wrestler, and his village people believed that he was unbeatable. Means there was no comparison of Vijay Singh around the world. Moreover, it's told that Vijay Singh was a bit boastful at times. What do you mean by boastful? Boastful is someone who is really uh, talking about oneself with pride. Next thing is told is because of this boastful nature, he took it upon himself to fight a ghost. कुछ ऐसा होता है that he took upon himself a fight with a ghost, that he challenged him, that he would love to fight a strong and a clever ghost. And let's see how he meets such a ghost to fight with. Let's start. There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders. Massive means strong, built up, large and strong shoulders, and muscular arms. He towered over others like a giant. This means that he was big enough, unusually big than others. Village में सबसे बड़ा था, like big था. Giant means unusually big. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all the other wrestlers in the world. This Pahalwan had but one shortcoming, which often landed him in awkward situation. But this Pahalwan, हिंदी में पहलवान बोलते हैं ना wrestler को, so he has a shortcoming. Shortcoming means any failure or a weakness or a fault. So उसका क्या weakness थी? That he was very fond of boasting. उसको बोस्टिंग का शेख ही बगाने का, हिंदी में हम कहते हैं शेख ही बगाना, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ इन प्राइड, उसका बहुत शौक था. एंड दिस ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन. ऑकवर्ड मीन्स वेरी डिफिकल्ट और हार्ड टू डील विद. कई बार ऐसी सिचुएशंस में अपनी बातों में फंस जाता था दैट ही हैड टू डील विद सम ऑकवर्ड सिचुएशंस. One day he was sitting in marketplace surrounded by several young men. After drinking many glasses of milk, he suddenly proclaimed. Proclaim means when you announce something publicly, right? Why are people afraid of ghosts? वो क्वेश्चन पूछता है कि लोगों को ये भूतों से डर क्यों लगता है. I am not, मैं तो नहीं डरता. I wish I met a stout ghost. मैं तो सोचता हूँ काश मैं किसी स्टाउट घोस्ट से मिलूँ. स्टाउट मीन्स लाइक very smart and healthy or clever, right? Strong, you could even say strong, right? Strong and brave. I'd teach him a lesson. और कहते मैं अब सबक सिखाऊंगा. किसको? घोस्ट को अगर मिलूंगा तो. There were murmurs of applause. Murmurs means the soft voices which are almost inaudible, जिनको आसानी से सुनते नहीं हम. Of applause मतलब everybody was praising, as well as apprehension. Apprehension means when you have some fear of having something bad to happen, like you fear that something bad might happen. So apprehensions भी थी. कुछ लोग सोच रहे थे अरे कुछ बुरा ना हो जाए. Among the young men, so ऐसा response मिला. Some were happy and some were apprehending the situation. Now, if you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, "You're sure to meet ghost." अब जब उसने ये बोला ना मैं तो चाहूँगा मिलना, तो किसी एक ने सजेस्ट कर दिया अगर तुम haunted desert जाओगे ना वहाँ तुम्हें पक्का घोस्ट मिल जाएगा. They roam there freely. वहाँ घोस्ट घूमते रहते हैं. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. और वो क्या बताता है कि वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें और चीखें सुनाई देती रहती हैं उस सारे haunted desert में. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. और ऐसी स्टोरीज भी हैं कि जहाँ वहाँ जो भी जाता है वो या तो उसको लूट लिया जाता है या वो मारा जाता है. वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या सच में जाना चाहोगे? विजय सिंग्स माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू. अब उसका दिल तो मजबूत है लेकिन अंदर से उसकी एक दो धड़कन थोड़ी रुक गई, जैसे उसे भी डर लगा. Why did he have to boast? सोच रहा है कि अरे मैंने ऐसा कहा ही क्यों.
Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. अब लेकिन बड़े कैजुअल वे में और बड़े शांत वे में बोला, छिपाते हुए अपनी असली सोच को, कि हाँ हाँ मैंने सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल. मुझे तो ऐसे लगता है सिर्फ कहानी ही है. ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट्स ट्रू. एक जो उनमें से एक बोला जो उसे पसंद भी करता था विजय सिंह को, कि नहीं नहीं ये सच्ची कहानी है. दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. जैसलमेर इज इन राजस्थान. वो कहता है जैसलमेर से 10 मील पश्चिम की तरफ रोड जाती है इस हॉन्टेड डेजर्ट को. सो रास्ता भी बता दिया. द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक विच लुक्स लाइक अ हेड ऑफ अ कैमल. फिर वो उसको पहचान भी बता दी कहाँ से वो हॉन्टेड डेजर्ट शुरू होता है. बियॉन्ड दैट देर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट. कहता है बस आगे तो बस वाइल्डरनेस और घोस्ट ही मिलेंगे तुम्हें उस एरिया में. नाउ व्हाट इज वाइल्डरनेस? वाइल्डरनेस इज समथिंग लाइक अनकल्टिवेटेड लैंड एंड इनहॉस्पिटेबल रीजन, जहाँ आपको जाके एक अच्छी वाइब्स ना मिले, राइट, अच्छी फीलिंग ना आए. Now the second part of story, let's see. Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. अब ये तो अपनी बातों में फंस गया. विजय सिंह अब कहाँ चल पड़ा? उस हॉन्टेड डेजर्ट की तरफ, और पूरा विलेज उसको छोड़ने आया है. जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड, आई आगे, एंड थ्रस्ट मीन्स व्हेन यू पुश समथिंग. ठीक है, क्या पुश किया? अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट. और उसने चलना शुरू कर दिया. देखते हैं हाउ ही फाइंड्स द घोस्ट. पिक्चर में दिखाया हुआ है. लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. एज ही वॉक द नाइट डीपन्ड. नाइट गहरी हो गई और रात बढ़ गई. द मून वॉज ब्राइट, चमक रहा था, एंड द स्टार्स ऑल्सो शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई. स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन में जहाँ उसे पहुँचना था, उससे थोड़ी देर दूर पहले विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट. विजय सिंह को क्या याद आया? उस पैकेट की जो ओल्ड वुमन ने उसको पुश करके उसके हाथ में पकड़ा दिया था. राइट, ही ओपनड इट. उसने खोला एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग. और क्या मिला? बस एक अंडा और टुकड़ा नमक का. द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर eccentricities. Eccentricities मीन अनयूजुअल एंड बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर. वो पहले ही विलेज में फेमस थी अपने अजीब से व्यवहार की. अब एक अंडा और लंप ऑफ सॉल्ट का क्या करेगा एक आदमी, है ना? लेकिन चलो जो दिया है, लाइक विजय सिंह जस्ट हैड इट. नाउ देर इज नो ऑप्शन. As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. अब जैसे ही haunted desert की तरफ उसने step किया, उसको क्या सुनाई दी? एक आवाज, विजय सिंह, you will get lost in the desert. ऐसी सी आवाज सुनाई दी. Come this way, I am your friend Natwar. At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. उसी टाइम विजय सिंह को लगा मेरा फ्रेंड नटवर यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो किसी भूत की ही आवाज़ है. ट्राइंग टू साउंड ब्रेव. अब कोशिश कर रहा है हिम्मत से आवाज़ देते हुए. ही कॉल्ड बैक. विजय सिंह ने क्या आवाज़ लगाई? वेयर आर यू माई डियर नटवर? इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू. कम हेयर एंड शो मी द वे. उसने भी हिम्मत जुटाते हुए विजय सिंह ने क्या जवाब दिया? ठीक है, कहाँ हो तुम? तो मुझे इस अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे. आओ और मुझे रास्ता दिखाओ. Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. अब कोई भी रेसलर आपने देखा है ना, जब भी फाइट करता है उससे पहले अपने दुश्मन को की कमियां या उसको देख लेता है कि कितना टफ फाइटर है ना. पहले साइज अप मतलब पहले ही जांच लेना या इवेलुएट कर लेना किसी को. ठीक है, तो वो चाहता था विजय सिंह कि एक बार मैं उस भूत से देख लूँ, मिल लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए वो कितना स्ट्रांग है. Soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you." Longing to meet you means like wanted to meet you. I have a very strong desire to meet you. उसको कहता है मैं तो तुझसे ही मिलने इतनी दूर आया हूँ. विजय सिंह ने peered मतलब देखा.
उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी से देखना, ठीक है। और कहा, अरे तू तो सिंपल सा घोस्ट है, मैं तो इतनी दूर चल के तेरे से ही तो मिलने, मैं तो चाह रहा था मिलना, ठीक है। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। अब घोस्ट का ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था, क्योंकि घोस्ट जब कहता था मैं घोस्ट, तो सब डर के फेंट फूट हो जाते थे, लेकिन विजय सिंह ने तो रिप्लाई दिया। सो ऐसी इंसल्ट की उसको आदत नहीं थी घोस्ट को। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर, या तो भागने लगते थे, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा होता था, या तो वो भागने लगते थे जब वो उस घोस्ट से मिलते थे, या फेंट हो जाते थे, मूर्छित हो जाना। फेंट हो जाना मतलब लूजिंग कॉन्शियसनेस, बिकेम अनकॉन्शियस फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर सम टाइम। तो ये रिएक्शन मिलता था। लेकिन इस बार इस घोस्ट को रिएक्शन क्या मिला विजय सिंह से? भाई मैं तो तेरे से ही मिलना चाहता था। ऐसी बात सुन के थोड़ा सा घोस्ट परेशान हो गया, राइट। बट हेयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। इट डिडंट मेक सेंस। घोस्ट को ये बात समझ नहीं आई कि ये मुझसे मिलने आया है, अजीब सा प्राणी है ना। घोस्ट से मिलने कौन आता है? रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। घोस्ट ने कहा, अच्छा तो मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे? दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस। उसने बड़ी बोरिंग सी वॉइस की, जैसे मिल के कुछ ज़्यादा खुशी ना हुई हो, ऐसी आवाज़। जब विजय सिंह ने थोड़ा नाटक किया, अंदर से तो डर लग रहा था उसे, लेकिन उसने कैसी वॉइस में जवाब दिया, दैट यू आर स्टूपिड घोस्ट, तुम तो एक बेवकूफ़ से घोस्ट नज़र आ रहे हो। मैं तो किसी स्ट्रॉन्ग घोस्ट को ढूंढ रहा था, मतलब वो ये जताना चाहता था मैं तो किसी स्ट्रॉन्ग घोस्ट को ढूंढ रहा था, तुम तो बेकार से घोस्ट हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैन्स थॉट। अगर घोस्ट होते तो मेरे मन की बात खुद ही पढ़ लेते। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर देन नो घोस्ट। चलो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे फुद्दू से ही घोस्ट से ही, कम से कम ना मिलने से तो अच्छा है ना, मैं किसी घोस्ट से मिल पाया, तुम्हारे जैसा ही सही। मतलब विजय सिंह ने थोड़ा उसको बातें ऐसे करी, ब्रेव बातें करी, और उसको ऐसा जताया जैसे वो तो बहुत ही कमज़ोर सा घोस्ट है। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। और आगे क्या कहता है विजय सिंह? एक्चुअली पता है मैं क्यों मिलना चाह रहा था? बिकॉज मैं लोगों से, आदमियों से लड़ लड़ के ना थक चुका हूँ। आई वॉन्टेड टू फाइट अ घोस्ट। मैं तो अब एक भूत से लड़ना चाहता था, देखना चाहता था, मैं अपनी चेक करना चाहता था। अब घोस्ट वॉज स्पीचलेस। ये सब बातें सुन के अब घोस्ट को तो आदत थी नहीं, वो तो बिल्कुल स्पीचलेस। अब क्या बोले? ही वॉज रियली नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस सच लाइक दिस। उससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। मार्शलिंग हिज ग्लोरी घोस्टली विट्स। मार्शलिंग मतलब अगेन उसने फिर अपनी घोस्टली क्लेवरली विट्स को, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करते हुए, मार्शलिंग मतलब कलेक्टिंग और गैदरिंग, अपनी इंटेलिजेंस को फिर उसने कोशिश करी। घोस्ट ने क्या कहा? ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक एट विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। डराने के तरीके से, या ऐसे देखा जैसे विजय सिंह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इस तरह से घोस्ट ने उसको देखा। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। मुझे तो नहीं लगता विजय सिंह तुम कुछ भी हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। विजय सिंह ने कहा अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सही हो या ठीक हो हो सकता है। दिखावे पे मत जाओ, जब लड़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। सो ऐसा उसने कह दिया। टेक योर ओन केस। अब आप, और फिर आगे फिर मजाक उड़ा दिया विजय सिंह ने। क्या कहा? अब तुम खुद को ही देख लो, टेक योर ओन केस, खुद को ही देख लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम नटवर होने की बात कर रहे हो कि तुम मेरे दोस्त नटवर हो, दो यू एक्चुअली आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, लेकिन तुम तो एक घोस्ट हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। विजय सिंह कहता है आजा, फिर अखाड़े में आजा, अगर तुझे लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ, आई गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माई पावर। So see, so this is how in part 1 of the story of a strange wrestling match, Vijay Singh meets a ghost. And why he meets a ghost? Because of his boasting nature, he just fell into his own words कि मैं तो घोस्ट से मिलना चाहता हूँ, और विलेजर्स ने उसको घोस्ट से मिलने भेज दिया। एंड उसको यहाँ पे डर तो लगता है, बट समवेयर जस्ट ही साइजेस अप एंड ही गैदर्स करेज एंड घोस्ट के साथ ऐसी कॉन्वर्जेशन करता है कि घोस्ट भी थोड़ा सा
हैरान परेशान होता है. So we'll be doing the vocabulary and question answer of this part. Second part we'll be doing in the next class. Go through, give a reading. For any query, you're most welcome. Have a nice day.